और जब बायो का मैम का कवर हो जाएगा, बायो के मैम का जब खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन तो मैं आता हूँ। पहले बायो के मैम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा केयरफुली। ओके मैम, ज्वाइन कर लिए हैं? हाँ सर, मैं हूँ। अच्छा, तो पहले आप में से जो भी इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं कर लीजिएगा। कुणाल को बोल दीजिए, वो आपको स्पॉटलाइट कर लेंगे। ओके, कुणाल, किसी को भी कीजिए कुणाल भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप ही को कर देते हैं। ठीक है, कीजिए। ओके ओके एवरीवन, मैम क्या बोल रहे हैं उनको उस बात को केयरफुली सुनिएगा, ठीक है? दिस इज योर प्लानिंग। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल हियर मी? सुना पाइसा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so let me introduce myself. I am Parinita Sharma and I would be your botany teacher, right? So botany part 2 more porham, and today first so welcome. Today is our first meeting at Ako online. Obviously we'll meet offline also, right? So etia ami let's discuss je mo portion to ba gutei tumar syllabus to ami complete keneke korim iate. First, so I think you all are aware যে তোমালোকে টাইম পিৰিয়ডটো অকমান কম পাবা, কাৰণ সেপ্টেম্বৰত যোৱাকালি পৰীক্ষা শেষ হৈছেহে, হয় ন? নেক্সট টাইম যদি আকৌ নৰ্মেল টাইমত কৰি দিয়ে, it would be on May. I think you know that normal নিটৰ সময় কি? It's on May, right? Yes, ma'am. হয় নে? Okay. So you never know next year কি হয়. It might be in May or it might be in September also. কিন্তু আমি May-লে prepare কৰিম, right? So May যদি next meet হয়, তেতিয়া হলে obviously we have a very short time period, হয় নে? আমি দুবছৰীয়া কোৰ্সটো এইকেইদিনৰ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰিব লাগিব, খুব ভালকে কৰিব লাগিব, so that we can try and do all the questions from the biology section. Especially I am concerned with my botany section. প্ৰত্যেকটো question যাতে ভালকে কৰিব পাৰা, so we have to do that. এতিয়া চোৱা, যেতিয়া টাইম পিৰিয়ডটো কম হয় তেতিয়াহলে আমি অকমান এডজাষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব নালাগে? Yes, ma'am. Right? So please listen to it carefully, okay? So our section 2 ki hobo je online class or offline class duita class e hobo. We are going to give you maximum number of classes so that within that period no our syllabus to complete hoy, karon syllabus complete no hole hoy jabo, right? So syllabus to jate complete hoy tumalok class ami okman basic e dim aru class 4 keneke hobo online mode to hobo, কিছুমান অফলাইন মোডতো হ'ব, পিছলে অফলাইন বেছিকে হ'ব। ইনিশিয়াল স্টাৰ্টত আমি দুইটা মোড হেৰি কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, অনলাইন ক্লাছ বটনি সেকশনত কি হ'ব যে ৰাতিপুৱা যোনটো তোমালোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, that morning session would be offline আৰু ইভিনিং সেশন would be online. বুজি পাইছা? ৰাতিপুৱা কি হ'ব? অফলাইন, ইভিনিং কি হ'ব? অনলাইন। ক্লিয়াৰ? Okay. কোনোবা কিবা ডাউটস থাকিলে সুধি লবা হা, বস্তুখিনি ভালকে শুনি লোৱা, so that you don't get confused. So যেহেতু ৰাতিপুৱা আৰু ইভিনিং দুটা সেশন হ'ব, so তেনেকে তোমালোকে বটনিৰ দুখন কপি কৰিব লাগিব। এটা হল অনলাইন কপিত আমি অনলাইনত যি পঢ়াম আৰু এটা হল অফলাইনত যি পঢ়াম। এতিয়া ৰাতিপুৱা বা অফলাইনত আমি কি পঢ়াম? We will start with the first year portion, ঠিক আছে? আমি একদম ফাৰ্স্ট লেসন, that is living world, যোনটো সিকোয়েন্স ন তোমালোকে এটো পঢ়ি আহিছা, অকমান জানা, লিভিং ওয়ার্ল্ড আছে, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে, প্লান্ট কিংডম আছে, এনেকে আমি সিকোয়েন্স টু কিহত আৰম্ভ কৰিম? অনলাইনত, সরি অফলাইনত আৰম্ভ কৰিম ইন দ্য মর্নিং। আৰু অফলাইনত, দ্যাট ইজ ইন দ্য ইভিনিং আমি এটা ফার্স্ট ইয়াৰৰ এটা সেকেন্ড ইয়াৰৰ। আই থিংক ইউ আর অৱেৰ যে বটনি সেকশনত ফার্স্ট ইয়াৰ কোর্সটো বহুত বেছি as compared to the second year, হয় নহয়? Yes, ma'am. Right? So first year obviously আমাক বেছিকে ক্লাস লাগিব, যেহেতু চ্যাপ্টারস বেছি, আর সেকেন্ড ইয়ারও কম। সো আমি কি কৰিম? ৰাতিপুৱা কৰি থাকিম কেটামান চ্যাপ্টারস, কিন্তু we'll start with the 11 portion, first sequence কিটা তিনটা কিন্তু সিকোয়েন্স আছে, লিভিং ওয়ার্ল্ড, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, প্লান্ট কিংডম, এইটা হল ৰাতিপুৱা। সেই তিনটা হৈ যোৱাৰ পিছত we will start with the second year first few lessons, reproduction in organisms, sexual reproduction in flowering plants, right? এইখিনি মই ভালকে লিখি দিম এতিয়া, so that তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা। এইখিনি হল তোমাৰ ৰাতিপুৱা অফলাইন ক্লাস কিটা। আৰু অনলাইন ক্লাস কিটা we are going to meet with the chapter morphology of flowering plants. যেহেতু তোমালোকৰ এটা মই I did not get the routine, তোমালোকে পাইছা নেকি routine?
No, ma'am. No, you'll get the routine, okay? So once we get the routine, botany, JD, if we have the first class offline, JD, our first class to offline hoy, according to the routine, our chapter ki hobo living world, right? JD, our first class to online hoy, তেতিয়া হলে our chapter ki hobo morphology of flowering plants. Kiba doubt? No, ma'am. No, ma'am. Clear? Yeah. Okay. Before going to that, is there anyone who does not understand SMS? Yes, ma'am. You don't understand SMS? So, I was speaking something. Did you follow? Yes. Right? For those who do not understand SMS, let me tell it once again. We are going to have the botany classes in two modes: morning session, evening session. Morning session would be offline and evening session would be online. Morning session, we are going to start with the first year portion. That is the first chapter, that is living world, right? And we are going to go in a sequence. And evening section, first year at our class will start with morphology. Second year at our portion will start with organism and population, right? Accordingly, ami bhalke di dim. So you have to make 2 copies, morning session and evening session. Ekhini loke kabar kiba doubts ase niki? Any doubt? Umesh. Yeah, please ask. Yeah, miss. Okay, I think it's clear, right? Okay. Yes, miss. So, okay. So whenever is the first class, accordingly, as I have said, if it is offline, we'll start with living world. If it is online, first year portion, morphology of flowering plants will start. Second year portion, organism and population will start, right? So we'll have many classes. That's the first thing. Second is, what are the books you need to follow? It is the same books for zoology and same books for botany, right? As far as the books are concerned, no, key books follow koriba. Zoology meme jetia ahibo, ahi pelai tumalok pura sequence of books bilakor naam likhi dibo. So accordingly, the same book for botany and zoology. What you have to do? Obviously, maximum ki koribo libo. Maximum numbers of questions you have to practice in the form of MCQs. So the more MCQs you do, the more precise you will be, right? যোৱাকালি কোনোবাই নিট দিছিলে নেকি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How was the, okay, how was the paper? Botany section? কেনেকুৱা হ'ল? First year বা বেছি আহিছিলে। First year পৰা বেছি, সদায় first year পৰা বেছি আহে কাৰণ first year কোৰ্সটোৱে বহুত বেছি। হয়নে? আৰু কথাটো হ'ল তোমালোকে পাৰিছানে নাই? অকমান পাৰিছানে নাই? What would be the result? Just forget it. তোমালোকৰ কাম আছিলে দিয়া and you all have prepared for the exam. That's more than enough in this time, no? In this COVID time. তোমালোকে পৰীক্ষা দিছা, that's মানে a great salute goes to you, right? Patience হৈ পেলাই যে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিছা ইমান ধুনীয়াকে, right? As far as the result is concerned, ekdom tension nolba. Those who could clear, very good, you'll be very good successful doctors. Those who could not clear by chance, যদি কিবা কাৰণে অকমান কিবা কাৰণে আমাৰ clear নহ'লে, we are here to help you. Next time sure sub clear হ'ব. Whatever you doubts you had, এবাৰ আমাৰ সেশনটোত আমি প্ৰত্যেকটো ডাউট কেনেকে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন আহিছে, কেনেকে কি কোৱেশ্চন আহে, everything we are going to do it, provided be sincere. Sincere to হ'বই লাগিব, হয় নহয়? Class basic thakibo, don't say, oh, there are so many classes, let's not do some classes. Don't do that, okay, please? Be sincere. We have a very short period to prepare ourselves. Be sincere, protect the class koriba, and all the doubts you are going to ask. Kaile korim, porohile korim, teneke nohoy. Because protect your doubt about koriba. The next point is, listen to it carefully. Ami ki korim? So, normal jeti ami first year, second year class koru, at that time what we do, we used to write each and every word in the board. I used to write, then you used to write, and then we go for the explanation. That requires a longer time. But this time, what we are going to do is, we are going to give, especially botany, I am going to give the PDF first, right? Suppose, living world is the first chapter that we start. What I will do, I'll give the PDF. PDF of pura notes to thakibo. Once you get the notes, either in the form of soft copy or in the form of hard copy, what you do, you have to write the notes in your copy.
নিজৰ নিজৰ কপিখনত নোটছটো মই যোনটো PDF পঠাম সেই PDFৰ যোনখিনি পোৰ্শন পঠাম লিখিব লাগিব don't think that I am going to read it from the PDF itself এবাৰ লিখিলে কি হ'ব প্ৰ্যাকটিছ হ'ব ন নিজে লিখা বস্তু এটা পঢ়িবলৈ ভাল right so you are going to get the PDF either in the form of hard copy কিন্তু পাব পৰা বা মোবাইলতো পাব পৰা what is your work you have to write the PDF in your copy portion the first lesson will be living world the PDF you are going to get it you will have to write it down discussion we are doing it in the class যোনটো portion মই পঠাম প্ৰত্যেকটো লাইন পঢ়িবা যতে ডাউটস আছে each and every doubt each and every portion we are going to discuss eneke korile ki hobo what would be the advantage is you don't have to write too much in the class you will save your time প্ৰত্যেকটো বস্তু লিখিব লাগিলে ক্লাছৰ লগত লাইভ ক্লাছত যদি লিখি থাকা তেতিয়ালে সময়টো বেছিকে লাগিব yes or no this is what I feel হয়নে Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. everyone follow right so if you start writing for example let's talk about a long topic morphology of flowering plants it's such a huge topic right if you start writing each and every word what is a flower what is a stamen right so you are going to waste time so this is the way that I'll go my PDF dim PDF তোমাকে পঢ়িবা পঢ়ি পেলাই তোমাকে copy down কৰিবা that is the portion we are going to explain in the class will that be okay with you all Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. So this is the way we are doing. It according to the routine, what would be the subject or what would be the topic? মোৰ যদি first class morning থাকে, মই living world PDF দিম. মোৰ যদি first class evening থাকে, offline থাকে, তেতিয়াহলে মই morphology of flowering plants or PDF দিম. Not the entire lesson obviously. গোটেই lesson টো দি দিলে তো তোমালোকে bore হৈ যাবা. Part কে ভাঙি পেলাই দিম. PDF পোৱাৰ লগে লগে start writing it down in your copy. So this is all that I wanted to say. I have to say actually. Tumalakor phalopra, if you have any questions, you want to ask me anything, you all can ask. Ma'am, offline class কেতিয়া পৰা start হ'ব? Offline class এইটো সপ্তাহৰ পৰা start হ'ব। তোমালোকে ক'ৰ পৰা কৈ আছা? ইয়াৰ পৰা কৈ আছা নে ঘৰৰ পৰা কৈ আছা? Ma'am, মই তিনচুকীয়াৰ পৰা কৈ আছো। মেম শুনি নাপালো মেম আৰু এবাৰ ক'ব নেকি Okay. Okay. কি শুনা নাই? কোনটো শুনা নাই? অফলাইন ক্লাছ কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট Offline class এইটো সপ্তাহৰ পৰা this week এইটো সপ্তাহৰ পৰাই হ'ব। ওকে মেম থ্যাংক ইউ ঠিক আছে so যোনবিলাক বাহিৰত আছা I think now situation is complete I mean much better no এতিয়াতো মানুহে অফলাইন ষ্টাৰ্ট কৰিছে no সবৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে so আমাৰো ষ্টাৰ্ট হ'ব so তোমালোকে যিমান সোনকালে পাৰা আহি যোৱা আহি পেলাই ক্লাছ বিলাক এটেন্ড কৰা তোমালোকৰ প্ল্যানিং কি অফলাইন কৰিবতো লাগিবই অফলাইন আৰু অনলাইনত যিমানে ভালকে নুবুজা অফলাইনটো লাগিব ন এটা মোড নে কি কোৱা Yes, ma'am. Right? So please attend the classes as soon as possible. Don't miss the class, okay? So june tinsukia pa koi asil no onba pagote kunba ejon student e koi ase please come down soon hoy ne ঠিক আছে ma'am aru baki kiba personal problems ba kedin man lagibo kiba ta hobo if you have any issues please discuss with Rakesh sir okay যদি ধৰা এটা ক্লাস কৰিব নোৱাৰো বা আহুতে অকমান দেৰি হৈছে whatever would be the issue please talk to sir ঠিক আছে স্যাৰক ফ্ৰীলি ক'বা তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে and then one thing is for sure offline class হ'বই অনলাইনও হ'ব অফলাইনও হ'ব অফলাইন বেছিকে হ'ব okay Okay, ma'am. yes ma'am okay any other questions everything clear no online offline we understood I will give the PDF oh yes another thing juntu chapter we are going to discuss you are going to get the video lecture also right আমি live class of junkhini discuss kori thakim hey topic tour video lecture paba but the video lecture could be previously recorded also not necessary moi jetia etia je tumalko enike live ke koi asu eitu video is a paba not necessary previously recorded good video mure my explanation tumalke each and every chapter pai jaba so you don't have to worry about the contents you just
decide and be sincere, and how will you do the course? Hetu bostut focus dia. As far as materials are concerned, each and every material you are going to get it from us. PDF u paba, video lecture u paba. Right? Since I think I have answered all your questions. Botany phalor pora aru kiba janibo ase niki? No, na? No, ma'am. All clear. Okay. So nice meeting you. Again, once again, welcome to Catalyst. We'll have a good class. Now, I think Geology ma'am will brief you out about the portion, planning, and the books. Thank you so much. Ma'am. Yeah, please say. Ma'am, botany books ki koisile ebar koi dibo niki? Botany books books kini botany and geology ekei books e thakibo. ঠিক আছে books বুলি কলে তামানে সোৱা আমি যে MCQ যে কম theory books একো কিনিব না লাগে theory তোমালোকৰ যি আছে that is boarded enough. We have the NCERT খনে পঢ়িব লাগিব. As far as other reference book is concerned, whatever reference book you have, that is enough, and plus my notes. মই যিখিনি notes দিম আৰু NCERT book খন, both of them together, it's more than enough. Basic reference book for the theory portion, please don't buy. ঠিক আছে? So theory কাৰণে basic কিতাপ নিকিনিবা. কিয় নিকিনিবা? The more the books you will take, the more confused you will be. প্ৰত্যেকখন বুকতে বেলেগ বেলেগকে explain কৰা আছে. So theory, you don't have to buy much books. Whatever you have, that is more than enough. NCERT obviously and my notes. For the MCQs, questions বিলাক entrance level of question কেনেকে আহে multiple choice ৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কেইখনমান বুক ফলো কৰিব লাগিব সেইখিনি জুলজি মেম আহিব এতিয়া মোৰ পিছত ভালকে লিখি দিব clear Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So I think that's all, right? So I would request Geology ma'am to please brief you out. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome. Hello, students. Hello. Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay. So let me introduce myself. Okay. So as ma'am have already told you, ma'am's planning. So for geology, there are 3 sessions. Okay. Morning there will be 1 session, and for evening there will be 2 sessions. In the first morning session, we will start with animal kingdom. Then we will go with structural organization, biomolecules, principles of inheritance, molecular basis of inheritance, and human reproduction. These are the chapters we will cover in morning session. In the evening session, due to first evening session, when we got a evening session to, there will be 2 days. Okay, evening session at ani ki korim ami physiology class portion to discuss korim. Okay, evening session to the parallelly choli thakibo, 2 din A2 session cholibo, 2 din A2 session cholibo. Okay, so first evening session at ami ki korim, we will discuss the physiology chapters. Okay, next in the second evening session, we will discuss biotechnology whole unit, human health and disease, evolution. We'll discuss questions from reproductive health and microbes, the geology portion. So this is my whole planning for the year. Okay, as a whole, I have divided your whole portion into 3 sessions, which we will discuss accordingly. This your syllabus. Okay, next. You have any doubts regarding the syllabus division? Then you can ask me. So all your chapters are here. If you want to note it down, you can note it down. A2 evening session week or 2 din hobo. A2 evening session week or 2 din hobo. Okay, and morning session also most probably week or 2 din hobo. So total tumalokor 6 classes thakibo geology per week. আমি 4 দিন ইভিনিং 2 দিন মর্নিং থাকিব ওকে এটা উইকত okay can I move further let me tell about the books which you need to follow
question jimane theory no padha, the main thing is practicing questions. Okay, theory book, NCERT book aru more notes, tar bahire no need to study anything, tar bhitorte you will get questions. But what you need to do, you need to practice more and more. Okay, for that thing you have to buy. First thing is that, okay, I'm telling about the book list. Have you done this portion or you need time to write it down? Done, ma'am. Done. Okay. So, to practice our karne, first we need to practice this NCERT fingertips. Okay, I will write the book list also. This is a book, NCERT fingertips. This is the first book. Second book is Master the NCERT. Duta volume ahe. Volume 1, volume 2. NCERT fingertips okol eta volume ahe. Okay, this is a single volume. Master the NCERT, there is 2 volumes. Mane class 11 eta volume, eta class 12 volume. Thirdly, very very important book. NEET or jito question bank. Very good book. Sub topic or after every topic. Etya like jiman questions aise. All the questions are given. Okay, so these are the books you must practice. Okay. Main thing is that biology theory part is, it is very easy to understand, but the thing is that you need more and more practice. So practice books necessary, very very important. Without practicing you can't clear NEET. Okay, so 3 books we will use for practice, and beside these 3 books, here we have Catalyst assignment. Okay, all these books are available in Catalyst office. Okay, if you don't have access, don't worry. So bilak book Catalyst officer tumalike pai jaba. Okay, so let me write down the book list name. So first book which we will discuss, practice books. All these are practice books. Okay, theory part of just NCERT book and my notes are more than enough. For practice books, we need Master the NCERT, Volume 1 plus Volume 2. Second book is NCERT fingertips. NCERT fingertips, it is of MTG publication. And Master the NCERT was Arihant publication. Okay. And the third book is NEET Question Bank. Very very helpful book. After every topic, you will get all the previous year questions. Very very helpful book. NEET Question Bank, and this is also Arihant publication. And also you are getting additionally Catalyst assignment book. Okay, so these are your practice book. And theory part, no need to buy any book except your NCERT book. তোমালোকে কালি পেপাৰত কি দেখিছা এনেকুৱা হৈছে না দুটা অপচনৰ মাজত বহুত বেছি কনফিউজন out of 4 options দুটা option to easily eliminate হয় but দুটা মাজত কনফিউজ হৈ ভুল কৰি আহিছা isn't it Yes, ma'am. so hey rectify কৰিব কোনে practice okay for that reason we need to practice আৰু যেতিয়া আমি কিবা এটা chapter complete কৰিম chapter to related তোমালোকে কি কৰিবা মই যেতিয়া এটা topic খতম কৰিম topic to related jiman kini questions ase gutte kekhon bookor pora tumalike solve koribo laibo okay gutte kila bookor pora solve koriba after that এটা chapter over hoy jabo there will be doubt sessions ami doubt sessions rakhim so that tumalokor jiman kini doubt ase hetu chapter it will be over eta chapter complete hoba doubt session o hetu chapter complete hoy jabo okay
So tumalike day 1 opera you have to be with the same energy, you have to work with the same energy, and eniko hoy many students initially energy thake and throughout the process energy down hoy last time zero hoy jay. That should not be the thing. Okay, to intensity start kora same intensity jabo lagibo, hetu kane ki koribo lagibo, you have to attend your classes regularly. Okay, don't think that okay zoology hoy jabo biology hoy jabo porilom. No, that is not correct thing. Okay, whenever you sit in the class you will have that kiba to hikiba. Okay, so whenever I am teaching a topic tumalage ghor jai you have to complete all the questions from that topic. Okay, chori part don't worry, chori jiman hoy I will cover everything, atke besi ekun na hai. Okay, just the thing is that you have to be sincere from day 1 itself. Okay, you have to day 1 on zero intensity kam kora last day leke jitya leke need dia same intensity you have to work. Okay, any doubts students you can ask me. Chori karne I am telling you NCERT or more notes, nothing else. Okay, but practice book you need to, all these books are jodi tumalike all these books are available in Catalyst office. Okay, don't worry, koto tumalike bisari furibo na lage, Catalyst office ate sab available ase. Okay, any doubts? Ma'am, classes for online hobo na offline hobo? Classes will be offline plus online. Okay, so same botany ma'am ji koise initially ketaman online class hobo for evening session 2. Okay, but gradually after some time classes will be offline. Okay, so itya morning session bilak offline hobo, evening session jitu session 2 asil hetu offline hobo, aru eta je evening session 1 asil hetu etiale currently online thakibo. Okay, jitu morning session offline, jitu evening session 3 asil session 2 asil that will be offline, aru jitu evening session 1 asil hetu currently online thakibo, or after some days it may be offline also. Okay, more classes offline hobo, maximum classes keda offline hobo. मैंने एक चीज बोलना था. हाँ, हेलो स्टूडेंट्स आई वुड जस्ट लाइक এটা स्टूडेंट्स শুনা পাইছা? Yes, ma'am. হেল্ল' শুনা পাইছা? Yes, ma'am. ওকে, চোৱা তোমালোকে এই অফলাইন অনলাইনত কনফিউজ নহবা. এটা বস্তু শিওৰ যে আমাৰ অনলাইন ক্লাছতকে অফলাইন ক্লাছ বেছি হ'ব, পিছলে যিমান সময় গৈ থাকে অফলাইন বেছি হ'ব. এতিয়া আমি দুইটা ষ্টাৰ্ট কৰিম. The second thing is অনলাইনত যিটো ক্লাছ হৈ আছে, ফৰ এক্সাম্পল ইফ আই ষ্টাৰ্ট উইথ লিভিং ৱৰ্ল্ড, এইটো নাভাবিবা যে অনলাইন আৰু অফলাইনতো আমি লিভিং ৱৰ্ল্ডে কৰিম, তেনেকুৱা নহয়. অনলাইনত কেইটামান টপিক হৈ থাকিব, অফলাইনত কেইটামান টপিক হৈ থাকিব. ক্লিয়াৰ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So অনলাইনত যদি মই লিভিং ৱৰ্ল্ড, সাপোজ আজিটো ক্লাছ আছে, মই লিভিং ৱৰ্ল্ড আজি অনলাইনত ষ্টাৰ্ট কৰিলো, কাইলে আমাৰ অফলাইন ক্লাছ আছে, তো কাইলেও মই সেই লিভিং ৱৰ্ল্ডটোৱে কন্টিনিউ নকৰো কিন্তু, ৰাইট? অনলাইনৰ টপিক কেইটা বেলেগ, অফলাইনৰ টপিক কেইটা বেলেগ. ক্লিয়াৰ ন? Yes, ma'am. Okay. Okay, students, any doubt from this part, zoology part? So class or confusion tumalike na rakhiba, because sir will explain everything. We are ready for do online classes also, offline classes also. Okay, that is not an issue right now. So sir online offline to sir koi diba bhalke, but we are ready for both. Okay, so it's my advice that tumaluk you come for offline classes. Okay, okay, then you have any doubt from this portion, then you can ask me. No doubt. Okay, then we will meet in class. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. हेलो सर. हेलो स्टूडेंट. हाँ मैम. सर हम लोग लीव कर सकते हैं क्या?
आप मैम आप लोग लिफ्ट कर सकते हैं अब। ओके, ओके मैम, थैंक थैंक यू सर। यू। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, आप लोग आज फर्स्ट डे हैं या मेरा क्लास कर रहे थे? सर फर्स्ट। फर्स्ट डे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं हूँ राकेश कुमार। मैं आपको, हाँ जा सकते हैं आप। नहीं, इसको मैंने वहाँ पे जूम पे ही रिकॉर्ड कर दीजिए। मैं आपको केमिस्ट्री 100% पढ़ाने वाला हूँ और फिजिक्स का अबाउट 60% कोर्स। मैं भी फिजिक्स में, मेरे एक और फैकल्टी हैं आर के सर, वो भी फिजिक्स का कुछ पार्ट लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द फिजिक्स टेकन बाय मी। जो मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअल है या जो स्कोरिंग है तो उस चीज का केयर मैं करूंगा। और बहुत ही अभी तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि हाँ मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, बट जैसे जैसे क्लास आपका आगे जाएगा तो आप बिल्कुल सही जगह पे ज्वाइन किए हुए हैं। जहां तक फी स्ट्रक्चर का बात है तो मैं अभी जस्ट ऑफिस में बैठा हुआ था तो सुन रहा था कि बाकी कोचिंग क्लासेस का क्या है। जैसे जो भी कॉल करते हैं तो बच्चे बोलते रहते हैं बाकी जगह 65, 75, 1 लाख, तो वैसा कोई फी रखा नहीं गया है कैटलिस्ट में। ऐसे यूजुअल टाइम में जब कोरोना नहीं था 2 ईयर बिफोर तो कैटलिस्ट का फी था 60,000, बट पिछले 2 साल से मैंने फी को जानबूझ कर रिड्यूस कर दिया 40,500 जानबूझ के किया हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मैं यहाँ पे ही आपकी जगह पे ही IIT गुवाहाटी से पढ़ा 2006-2010 मैकेनिकल से। मैं सुपर 30 का एक्चुअली प्रोडक्ट हूँ और बहुत अच्छे रैंक से IIT भी क्रैक किया। तो यहाँ पे रहे, फिर यहाँ पे ही 2010 से कोचिंग को रन कर रहा हूँ, तो एक ऐसे भी थोड़ा सा मन में एक सॉफ्ट फीलिंग है जहाँ पे जैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ तो हेल्प अभी करने का एक ही तरीका था कि अच्छे से पढ़ाएं और थोड़ा फी को कम रखें। ऐसे जो मेरा सिंगल सब्जेक्ट भी शाम में मेरा क्लास चलती है, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का ही अगर मेरा पूछिएगा फी तो 22,500 है अगर एक सब्जेक्ट का फी मेरा देखिएगा। बट जितना मैं फी लेता हूँ उतना डिजर्व करता हूँ, उतना पढ़ाया जाता है कैटलिस्ट में। नॉट लाइक दैट कि हाँ बस एडमिशन ले लिए। उसका एक छोटा सा बात मैं बोलूंगा विदाउट क्रिटिसिज्म, जैसे क्रैश कोर्स में जो कैटलिस्ट में हुआ, बाकी जगह भी क्रैश कोर्स में क्या प्लानिंग था क्या नहीं था, बट मेरा सोचना और बोलना ये है कि जो एज ए टीचर में इंट्रोडक्शन क्लास में जो बोलता हूँ या जो बोल रहे हैं टीचर हैं, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, उसी चीज को फुलफिल किया जाए। तो क्रैश कोर्स में जो भी मैं बाहर में जो मेरे काउंसलर हैं उनको अगर बोलते भी हैं कि आप ऐसा बोलना है कि 45 डेज का क्लास चलेगा, तो हम लोग 45 डेज बोले लेकिन 60 डेज का क्लास दिए, मैक्सिमम जितना काम कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई बच्चे बोले तो उनको अलग अलग बैच में जोड़कर मैक्सिमम चीजें पढ़ाया गया है। तो अभी आपका आ गया सितंबर, राइट? और ऐसे यूजुअली ड्रॉपर बैच, रिपीटर बैच क्लास 12 के बाद ड्रॉप देने खराब बात नहीं, इसको निगेटिव मत लीजिए, एक नाम है इसलिए मैं बोलता हूँ, बट मैं भी ड्रॉपर ही हूँ। एक साल ड्रॉप देके मैं IIT किया हूँ, इसलिए कुछ भी अच्छा काम करने के लिए आपके पास पेशेंस है, बहुत बड़ी चीज है, इसको डोंट टेक इट निगेटिवली। तो हम लोग के पास सितंबर है और आई विल ट्राई कि मेडिकल का मोस्ट प्रोबेबली इस साल जैसा नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी नीट का एग्जाम हो जाएगा। इसी बार तो कुछ ड्यू टू सम रीजन एग्जाम एक्सटेंड कर गया, बट हर साल तो ऐसा नहीं होगा। हर साल आप कोरोना का बहाना नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोरोना है तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाना चाहिए, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि नेक्स्ट ईयर शायद मे लास्ट या जो यूजुअल उस टाइम पे होता था, यूजुअली नीट का एग्जाम होता था मे लास्ट वीक में, नहीं तो जून का फर्स्ट वीक में, ये यूजुअल था 2019 से, मतलब 20 से पहले। तो उसी को टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्च लास्ट तक 90% सिलेबस और अप्रैल लास्ट तक 100% सिलेबस। मार्च लास्ट वीक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज JEE के बच्चे भी जो भी रहेंगे तो उनका भी मैक्सिमम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर ये बोल दूंगा कि जनवरी लास्ट तक खत्म कर दूंगा या ऐसा कोई बोलता है कि खत्म कर देंगे तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि हाउ इट इज पॉसिबल टू फिनिश 2 ईयर सिलेबस सारे कुछ समझाते हुए प्रैक्टिस करवाते हुए जस्ट बाय टेकिंग 3 और 4 मंथ क्लास इज इम्पॉसिबल थिंग। मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने देखिए अभी आप रूटीन तो पहले ही मिल जाता, बट दो दिन 3 दिन से आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बैठकर बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। जैसे आपके जो बायो के मैम जो प्लानिंग बता कर गए हैं
तो उनसे मैं सैटरडे को ही मीटिंग किया था कि जो कैसे किया जाए। मीटिंग करने के बाद हम लोग फाइनल जो बोल रहे हैं वो हम लोग की मीटिंग का फाइनल रिजल्ट है। तो आप लोग को मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन 2 क्लासेस चलेगा। किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? नो सर। नो सर। और जो भी बच्चे बाहर में हैं, प्लीज आई विल सजेस्ट यू एज सुन एज गुवाहाटी आ जाइए। अगर बाहर से है, किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो दूसरी बात है, सुबह और शाम हम लोग ऐसे तो जूम पे रहूंगा ही, मेरा कांस्टेंट कंडीशन है, बट फिर भी जितना जल्दी हो सके, बिकॉज कल से ही ऑफलाइन होगा। कल जो भी मॉर्निंग का क्लास अगर मैं लूंगा या जो भी लेंगे, तो मॉर्निंग सेशन मान के चलिए 100% ऑफलाइन। इवनिंग सेशन में कुछ दिन 1 या 2 दिन प्योरली ऑनलाइन रहेगा, या कुछ क्लासेस ऐसा करेंगे कि सपोज कीजिए कि अगर मुझे शाम में एक ऑनलाइन क्लास देना है, तो घर जाने का अगर ऑफलाइन भी है तो घर जाने का आपको 1 घंटा का टाइम रहेगा, ताकि घर पे जाकर फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके। मतलब प्रॉपर ऐसा मैं बनाऊंगा। तो मॉर्निंग सेशन सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन इवनिंग सेशन का रूटीन तो मैं दूंगा, बट रूटीन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सकता है, कभी कुछ चेंजिंग हो सकता है, रिजिड नहीं रह सकते हैं। खासकर आपके बैच के लिए रिजिड रहेंगे तो ऑन टाइम चीजें खत्म नहीं हो पाएगा। नहीं सर, आपने तो ऐसा रूटीन दे दिया था। जैसे 11th का रूटीन बिल्कुल फ्रीज किया हुआ रहता है मेरा। कोई पेरेंट्स लाख कोशिश करेंगे तो मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ, मतलब हो ही नहीं पाएगा। 1 साल के लिए मैंने रूटीन अगर दे दिया तो फिर चेंज हो गया, फिक्स हो गया। मतलब लाख कोशिश कर लेंगे कि मेरा मंडे को 4 to 6 11th है, कोई चाह लेगा तो 1 साल तक चेंज नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा एज ए टीचर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बच्चे और भी जगह कहीं कहीं पे क्लास करते रहते हैं, तो अगर मैं चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। बट आपका बैच है कि सारा सब्जेक्ट एक जगह पे होता है, तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पीछे, पर जो भी रहेगा आप लोग से पूछ कर, ऐसा नहीं कि खुद से मैं इम्पोज कर दिया। ओके, ठीक है एवरीवन? किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? तो सबसे पहले रूटीन तो मिलेगा ही। आप लोग तो ऑफलाइन के लिए रेडी है ना? यस सर। हाँ सर, क्लास एक साथ होगा या मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट ऐसा होगा? नहीं, मॉर्निंग शिफ्ट के बाद बीच में गैप रहेगा लंच का, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आपको दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए, राइट? हम लोग ना आप रोबोट है ना मैं रोबोट हूँ, तो कम से कम कुछ तो इस तरीके से किया जाएगा क्लास करने में मजा भी आए। ऐसा नहीं कि सुबह से रात तक बैठाए हुए हैं। मतलब क्लास करवाना है, पढ़ा सिखाना है, पढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ उस तरीके से करूंगा। किसी दिन अगर सपोज कि 2 बजे से क्लास है, तो 2 बजे से क्लास है तो उस टाइम पे 12 बजे बुलाएंगे, सुबह में नहीं बुलाएंगे। 2 बजे से लेकर शाम में 6-7 तक क्लास करके जाइए। मतलब वो मुझे रूटीन फाइनल करने दीजिए, ठीक है? बट सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का कैसे कैसे क्लास नोट्स, फिजिक्स का कैसे क्लास नोट्स बनाना है, बायो का कैसे बनाना है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। और अच्छा, जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में है, क्या वो सब बाहर से जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं गुवाहाटी में आ चुके हैं? सर मैं गुवाहाटी से ही हूँ। बाहर से हूँ। सर मैं भी गुवाहाटी से हूँ। तो तो जो बाहर के बच्चे हैं वो उनका प्लान क्या है? अभी घर से ही क्लास करना है या गुवाहाटी आना है? सर कल गुवाहाटी जाऊंगा। सर कल निकलेगा। हाँ ठीक है, तो जब तक आप नहीं निकालते हैं तब तक ऑनलाइन क्लास करते रहिएगा, ठीक है? और अगर ऑन द वे रहेंगे, रास्ते में रहेंगे, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो कुछ लॉस तो होगा नहीं आज की डेट में। ओके, और आज कैसे कैसे क्लास नोट्स बताना है दोबारा नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा पजल यही होता है, कुछ बच्चे को एक ही कॉपी में सब कुछ लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहला है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ तो मुझ में खास रहा होगा, 2% तो पक्का खास रहा होगा दूसरे से। मैंने IIT किया, बाकी लोग नहीं किए, जबकि सब लोग पढ़ रहे थे सेम थिंग। क्या खास था? खास था मेरा डेडिकेशन, हार्डवर्क। मैं नहीं बोलूंगा मैं ओवर टैलेंटेड था। ओवर टैलेंटेड जो रहता है उनका तो होता ही नहीं है, वो ईगो में आ जाते हैं, मैं तेज हूँ, ये जहाँ पे यहाँ पे सेट कर गया ना, मतलब वहां पे कहानी खत्म। तो एक्चुअली सबसे पहले तो ग्राउंडेड रहना है, धरती पकड़ के रखना है। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, राइट? सेकेंड थिंग, वेल प्लान्ड। 2 दिन लेट से काम स्टार्ट हो, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसे नहीं चलो कुछ भी कर देते हैं, तो कुछ भी करते हैं तो कुछ भी हो भी जाएगा, उसमें होगा भी और नहीं भी होगा। तो दूसरी बात है कि मैं आपको बुक्स का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा।
क्योंकि टीचर कोई पढ़ाते हैं, खासकर जैसे सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप 10 बुक फॉरेन राइटर का पढ़ लीजिएगा, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, और मेरा नोट्स रहेगा वो ऊपर ही रहेगा मेरा नोट्स। इसलिए 10 साल से मैं वो काम कर रहा हूँ, बहुत सारे IIT का भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, बहुत बड़ा रिजल्ट दिया हुआ हूँ कैटलिस्ट से। ये कोई न्यू स्टूडेंट जो बाहर के बच्चे हैं तो कैटलिस्ट कोई गुवाहाटी आएगा तो सही से अगर आप पता कीजिएगा तो अभी तो बहुत सारा कोचिंग है, बट जो बहुत 10 साल 15 साल से गुवाहाटी में है तो वो अगर सही से पता करेंगे तो कैटलिस्ट के बारे में पता चलेगा कि 2010 से बहुत फुल फ्लेज में कोचिंग चल रही है और बहुत डेडिकेशन के साथ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट मार्केटिंग वाइज। मार्केटिंग तो मैं कैटलिस्ट के बाहर में करता ही नहीं हूँ, लाइक करना चाहिए, बट सबसे बड़ा मार्केटिंग गुवाहाटी में मेरा है चेन पब्लिसिटी। तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को जो बता रहे हैं, और बहुत अच्छा टीम है हम लोग का, और फीस कमेटी तो मैं ही लेता हूँ, तो बहुत डेडिकेशन के साथ आपका कवर होगा। आपके फ्रेंड कुछ ना कुछ फ्रेंड इधर उधर भी ज्वाइन करेंगे। आफ्टर 4 मंथ 3 मंथ कॉन्सेप्चुअली आप कहाँ पे हैं वो कहाँ पे, ऑटोमेटिक कंप्लीजन हो जाएगा। तो 1% रिग्रेट नहीं हुआ कि हाँ आप कैटलिस्ट ज्वाइन करके गलत डिसीजन लिया। मतलब उसके बदले तो मैं 100% श्योर होता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, उसमें तो कहीं पे कोई अनपैरेलल कोई पैरेलल है कंपेरिजन रहेगा ही नहीं। प्लस फैकल्टी, सपोज केमिस्ट्री मैंने बोला कि राकेश सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो फिर पिछले 10 साल से दूसरा कोई सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे नाम पे एडमिशन हो गया, 10 क्लास मैंने लिया, बाकी दूसरा इंट्रोड्यूस, नॉट लाइक दैट। बच्चे का एक फेथ होता है, पेरेंट्स बहुत खून पसीने से अपना मेहनत से पैसे भरते हैं। तो जो भी बात है, जैसे मैंने पहले ही क्लास में बोला कि फिजिक्स के 2 फैकल्टी रहेंगे, मतलब ये फैक्ट है, रहेंगे मतलब रहेंगे। केमिस्ट्री सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा मतलब मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे जिस तरीके से भी 2 साल का सिलेबस पढ़ाना है। तो बायो के मैम आप देख ही लिए हैं, वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे ही मैथ के लिए भी सेम थिंग रहेगा, मैथ के भी 2 फैकल्टी रहेंगे। तो स्टूडेंट आप एक काम कीजिएगा, पहले केमिस्ट्री का क्लास नोट्स, बुक्स कौन सा फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, बायोलॉजी का बुक्स मैम ग्रुप में डालेंगे, आपको जिस ग्रुप में ड्रॉपर में से ग्रुप में आपको कौन कौन सा बुक लेना है। और मैम लोग जो थ्योरी का तो बोलेंगे नहीं, बट प्रॉब्लम के लिए जो भी बोलेंगे वो तो कुछ बोले भी होंगे ना, मास्टर द एनसीईआरटी फिंगर, मतलब उतना कंपलसरी है। आप मेडिकल वाले बच्चे बायो संभाल लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैं संभाल लूंगा। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बोलते हैं बायो अच्छा है, बट वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। बायो अच्छा होने का मतलब है 90 में से कम से 80 क्वेश्चन सही होना पड़ेगा, राइट। और कोई 80 क्वेश्चन सही करके लाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं उतना तो बना ही दूंगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 500 प्लस में जाना पड़ता है, राइट, आज के डेट में। तो केमिस्ट्री के लिए इतना नोट्स आज ही रेडी करना है। ये मैं क्लास नोट्स का बात कर रहा हूँ। दोबारा बिल्कुल नहीं पूछना है कि सर कौन सा कॉपी में किसको लिखे हैं, ओके। एक क्लास नोट्स का बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 नोटबुक लेगा, क्लास 11th क्लास 12th, ठीक है। टाइम कम है तो हो सकता है 2 चैप्टर चले फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लास 11th का अगर मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कितना क्लास नोट्स, 2, क्लास 11th का क्लास 12th का। प्योर इनऑर्गेनिक का एक ही बनाइए, ओनली 1, ठीक है। और फिजिको इनऑर्गेनिक, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर फिजिको इनऑर्गेनिक आप इस कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट फिजिको इनऑर्गेनिक में इन सब टॉपिक को मैं रखता हूं। फिजिको इनऑर्गेनिक का भी 2 नोट्स बनाना है। नाम ही दीजिएगा,
कॉपी फर्स्ट, कॉपी सेकेंड। तो सर फिजिको इनऑर्गेनिक में टॉपिक क्या रहेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको तो क्लास 11th का पता होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल भी रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रहता है, उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी रहता है, क्वांटम नंबर भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रहता है। बट बिकॉज मैं फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं तो मॉडर्न फिजिक्स तो क्लास 12th में था ना, और तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ना था मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th का। एक दूसरी बात है कि बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है, बट टॉपिक तो पढ़े होंगे। हाँ हाँ सर। सर। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा केमिस्ट्री में मिलेगा या ज्यादा फिजिक्स में मिलेगा? फिजिक्स में और डेप्थ में है, एग्री? और दूसरे sir. दोनों जगह का क्या फार्मूला पे कोई डिफरेंस है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग है या सेम ही है? सेम। डिटो सेम है भाई। तो हम लोग स्मार्टली क्या करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लेंगे, एग्री? और केमिस्ट्री में अगर 20% पढ़ना है तो फिजिक्स में 100% पढ़ना है, तो आप ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। तो उससे हम लोग का प्लान एक ही चीज को 2 बार नहीं खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर कवर कर लेंगे, एग्री? तो दोनों हम लोग का स्मार्टली कवर हो जाएगा। मतलब मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ, प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए कि कम टाइम में 100% चीजों को कैसे बहुत बढ़िया से हंसते खेलते कवर हो जाए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसका देखिए 2 फायदा, कुछ टॉपिक ऐसा है ना वो 2 जगह मार्क्स देके जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें से एक ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स में भी काम आ जाता है और केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक में मैं रखूंगा केमिकल बॉन्डिंग को, और यहाँ पे ही मैं रखता हूँ रेडॉक्स को। हालांकि रेडॉक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चीज है, बट मैं इसको इस कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे एक और टॉपिक मैं रखना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए अब इसका मैं इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बता रहा हूँ। नीट में अगर 45 क्वेश्चन है तो केमिकल बॉन्डिंग से ही 4 या 5 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा चीज है, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, फजन सूल, बहुत सारा चीज यहाँ पे है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो 1 2 3 4 5 इस 5 चैप्टर को कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो क्लास 12 में आप जानते हो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा। अरे 5 चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस 5 चैप्टर से कम तो कितना भी आपका होता है ना टाइम खराब चल रहा है, कितना भी टाइम खराब चलेगा 10 क्वेश्चन तो पक्का आएगा आउट ऑफ 45। अरे इस तरीके से बढ़िया से पढ़ाते हैं कि 10 में से 10 बनेगा। जितना यहाँ पे पूछा जाएगा उससे बहुत ऊपर लेवल का मैं डिलीवर करूंगा, चीजों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? तो ये 5 को मैं रखता हूँ जानबूझकर, एक अलग नाम ही दे दिया हूँ, जिसमें फिजिकल का भी कैरेक्टर है और इनऑर्गेनिक का नाम ही दिया हूँ, फिजिको इनऑर्गेनिक, राइट? इसके लिए कितना कॉपी बना लेना है? 2 कॉपी। सर कवर होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ है इसमें करना, ठीक है? समझ गए एवरीवन? यस सर। और वहां पे मैं बोलते रहूंगा कि कौन सा कॉपी में किसको लिखना है। कॉपी फर्स्ट में कौन किसको लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। तो ये है फिजिको इनऑर्गेनिक के लिए आपको 2 कॉपी बनाना है, इसमें इन सब टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्लास 11th क्लास 12th अलग कर लेंगे। और क्लास 11th क्लास 12th का अगर सीक्वेंस अगर मैं बताऊंगा तो क्लास 12th का सीक्वेंस मेरा ये रहेगा पढ़ाने का। अभी से मैं इसको ओपन ही कर रहा हूँ कि क्या क्या सीक्वेंस रहेगा क्लास 12th का। पहले मैं पढ़ाऊंगा सीपी, समझते हैं? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मैं कवर करूंगा
मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, एवरीथिंग। मतलब इसका नाम ही देता हूं मैं, अलग चैप्टर का नाम ही दे दिया हूं, कॉन्सेंट्रेशन। ओके एवरीवन, मतलब इसके बाद कवर करूंगा। सीपी कवर करने के बाद ये अगर कवर हो जाएगा देन केमिकल काइनेटिक्स। एग्री? उसके बाद और भी जो चैप्टर रहेगा, इसके बाद कौन सा चैप्टर रहेगा? सरफेस केमिस्ट्री बहुत लाइट टॉपिक है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, बोलिए तो पढ़ा दूंगा, बट वो हैंड आउट से काम चल जाता है, बहुत लाइट टॉपिक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री लाइट है, उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है? लेकिन उसका थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव मैं ही देता हूँ बनाकर, यानी कि आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ पे होता है। ये नहीं जानिएगा, ये नहीं समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद सॉलिड स्टेट। ट्वेल्थ में और तो कुछ है नहीं। ट्वेल्थ में और कोई चैप्टर जो आपको लग रहा है कि है? ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ इतना तो पता होना पड़ेगा ट्वेल्थ में कौन कौन सा सर फिजिकल यही केमिस्ट्री है। यही है। यही है। चलिए कोई बात नहीं है, चीजों को काउंट करने से चीजें कम हो जाता है, एक साइकोलॉजी है। ऐसा लगता है ना कि कितना कुछ पढ़ना है, राइट? बट चैप्टर लिख देंगे तो चैप्टर कम लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा इतना ही तो है। 11th में कौन कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री है स्टूडेंट, पता है आप लोग को? मोल कॉन्सेप्ट। भाई अब जिसने भी नाम लिया है मोल कॉन्सेप्ट का, बोलने में तो बड़ा एक छोटा सा चैप्टर लगता है, पता है कि नहीं? आरसी मुखर्जी में जाके देखिएगा, एक बुक है जो मैं फॉलो करवाता हूँ, मॉडर्न अप्रोच टू ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर 5 चैप्टर आ जाता है, 5 चैप्टर। पहला तो है मोल कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री। थर्ड, इसमें थर्ड आता है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। फोर्थ आ जाता है यूडियोमेट्री। अब फिफ्थ आ जाता है टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर द मोल कॉन्सेप्ट, और ये बैकबोन है। मोल कॉन्सेप्ट का किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आप नाम बताइए जहां पे मोल कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, कोई भी चैप्टर। भाई नंबर ऑफ मोल तो लगेगा, जहां पे मोल का बात हो रहा है मतलब मोल कॉन्सेप्ट का ग्रिप होना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आती है, बट ये भी नहीं बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन इजी है। आपके पास टाइम कम है ना, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन है, राइट? 180 मिनट और 180 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे कितना मिनट आया? 1 मिनट। इसलिए इस तरीके से कॉम्पिटिशन टफ है। चीजें आसान ही है, आसान काम है, लेकिन कम टाइम दिया गया है तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे भी एग्जाम हॉल में जाते ही लगता है कि सब कुछ पढ़े और वेपराइज हो गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट? लो हाँ सर। कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन वो सब टेस्ट वगैरह देते देते सब कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। मोल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कौन सा चैप्टर है? गैसियस स्टेट, राइट? उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर जिसका 2 जगह का यूज करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट? बट ये पढ़ेंगे तो ये समझेंगे, ये समझ में आएगा तो यहाँ पे इसका यूज होगा, राइट? थर्मोकेमिस्ट्री लिखना नहीं है इसको, वो मैं जस्ट एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि कितना कवर करना है। और एक कौन सा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम। और कौन सा है? आयोनिक। इसमें से कुछ तो क्रैश कोर्स के बच्चे कर भी लिए होंगे, केमिकल आयनिक, राइट? कर लिए हैं क्या? जब क्रैश कोर्स के 1-2 बच्चे होंगे, उनको पढ़ाया था मैं शायद। एनीवे, तो कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5। तो 5 चैप्टर यहाँ पे हो गया। एक और चैप्टर लिख लीजिए, टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, मतलब 10 चैप्टर है। तो ये हो गया प्रॉपर फिजिकल केमिस्ट्री का। वैसे ही इनऑर्गेनिक का अगर देखिएगा तो बोलने में बहुत आसान लगेगा, एस ब्लॉक, राइट? उसके बाद पी ब्लॉक और उसके बाद डी ब्लॉक, राइट?
बट इसमें कौन कौन क्या क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम पोटेशियम, सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम कैल्शियम। पी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप पे क्या पढ़ना है? थर्ड ग्रुप से यहाँ स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। बोरॉन, राइट, बोरॉन फैमिली, उसके अंदर जो भी रहेगा। फिर फोर्थ में कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन। फिफ्थ में नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स्थ में ऑक्सीजन फैमिली। सेवेंथ में बहुत बड़ा ब्लॉक है हैलोजन फैमिली। और उसके बाद थोड़ा सा इनर्ट गैस। फिर डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक में ही आता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां देख रहे हैं वो कहाँ का है? डी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक में जितना भी मेटल है सब डी ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसको यहाँ पे देखते रहना। तो दिस इज योर प्लानिंग। किसका किसका कितना क्लास नोट्स बनाना है? क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का 2 बनाना है। एक का हेडिंग दे दीजिएगा क्लास 11, दूसरे का हेडिंग दे दीजिएगा क्लास 12। फिजिको एनर्जी का 2 बनाना है। मैं खुद ही ग्रुप में लिखते रहूंगा कौन सा कॉपी में क्या लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट ये है। और 15 to 17 क्वेश्चन आता है मेडिकल में आउट ऑफ 45। और जिस लेवल से पढ़ाते हैं उसमें सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसमें अगर कोप अप कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो इसके लिए अभी एक ही कॉपी बना के लेके चलिए, बाद में रिक्वायरमेंट होगा तो मैं एक्स्ट्रा कॉपी बनवा दूंगा, ठीक है। इसमें स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर से, एकदम जीरो लेवल से। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और वहां से चीजों को स्टार्ट करके लेकर चलें, ठीक है। ओके, अब इसको हटाएं। केमिस्ट्री का कितना क्लास नोट्स, बाकी प्रॉब्लम का खुद बताते रहूंगा। अभी क्लास नोट से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम का अलग नोटबुक रहेगा। दिस इज फॉर द ओनली क्लास नोट्स, जस्ट स्टार्ट करने के लिए। आप लोग को मौका देंगे क्वेश्चन पूछने का, मुझे डिस्क्राइब करने दीजिए, ठीक है। इसमें ये आपका रेगुलर क्लास रहेगा, तो क्रैश कोर्स के रिस्पेक्ट में इसमें पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। क्रैश कोर्स में क्या रहता है कि चलो थोड़ा भी पढ़ा दिए काम चल जाएगा। नाम ही था क्रैश कोर्स, शॉर्ट टर्म का क्लास था। फिजिक्स को 2 पार्ट में, क्लास 11, क्लास 12, और रूटीन आज शाम तक या कल तक मिल ही जाएगा। कल से ही क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन के लिए। जो भी गुवाहाटी के बच्चे हैं, कल जितना बजे बोला जाएगा ग्रुप में ऑफलाइन आ जाइएगा, ठीक है। कल मेरा ही पहला क्लास रहेगा और कल से ही क्लास स्टार्ट होगी। और फिजिक्स में तो स्टार्ट भी किया हो ना, वेक्टर। अच्छा, जितने भी आप लोग तो 12th पास स्टूडेंट हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सबको आती है। हाँ सर। बोलिए भाई। हाँ सर। लेकिन मैं इस बात के भी 99% श्योर हूँ कि मैथमेटिकल टूल में ग्राफ या स्लोप पे आपको बहुत कम पकड़ होगा। हाँ तो सर, हाँ। मैथमेटिकल, यस, हाँ सर, वो हटा दिया गया था 12th में, 30% रिड्यूस। मैंने क्या बोला बताइए तो? मैंने बोला मैथमेटिकल टूल क्या हटा दिया, उसको छोड़ दीजिए। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, मैथमेटिकल टूल सिलेबस में कहीं लिखा भी हुआ भी नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा बात आप लोग कर रहे हैं कि आपको सिलेबस में मैंने ट्रांसलेशन दिया इंग्लिश का, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब मैं बोल दिया एबीसीडी नहीं रहेगा, व्हाट, विदाउट एबीसीडी आप ट्रांसलेट कर पाओगे? तो बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स समझ पाएंगे क्या? इवन केमिस्ट्री समझ पाएंगे? केमिकल काइनेटिक्स, इंटीग्रेशन आता है ना, स्लोप भी आता है, ग्राफ भी आता है। तो मैं बोल दिया कि मैथमेटिकल टूल या ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको डार्क में रखा गया है, उसको हटाइए, माइनस कीजिए। वी आर वेरी वाइज पीपल, मुझे समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है। एनसीईआरटी सबसे बड़ा तो वंडर
आपको आश्चर्य रहेगा, एनसीईआरटी जाके देखिएगा आज, रेजोनेंस एक पैराग्राफ में है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का थ्योरी देखिएगा तो एक पैराग्राफ है बस, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। और रेजोनेंस कम से कम तो मुझे पढ़ाने में लगता है 20 आवर, वो भी कम पड़ जाता है। कितना भी अपने आप को कंप्रेस करेगा ना, नहीं कम पढ़ाना है, कम पढ़ाना है, फिर भी 20-25 आवर लगेगा मिनिमम, तब जाकर रेजोनेंस में आप कुछ सीख पाइएगा। बिकॉज रेजोनेंस इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना रेजोनेंस का तो ऑर्गेनिक का एक भी क्लास नहीं चल सकता है। नॉमेनक्लेचर तक चल सकता है, बट आफ्टर नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास पॉलीमर भी पढ़ाते रहेंगे, तब भी वहां पर रेजोनेंस आएगा। कैसे सर? पूछ दिया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों है ना पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में, अब स्ट्रॉन्गर है, इसका आंसर है, ये आईटी का है वो क्वेश्चन है। वहां पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। लास्ट क्लास तक रेजोनेंस है। नॉट ए सिंगल क्लास ऑर्गेनिक का आफ्टर नॉमेनक्लेचर बिना रेजोनेंस का नहीं चल सकते हैं, तो रेजोनेंस में बहुत होल्ड होना पड़ेगा। ये मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नॉट फॉर द बोर्ड। बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको अपने रियलिटी से वाकिफ हो जाना चाहिए। अब प्लस 9 या 10 मंथ के लिए आप सबसे पहला तो एक काम करना है कि फ्रेंडशिप को भूल जाइए। फ्रेंडशिप है वेल एंड गुड, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, बट आप अपने सफर पे अकेले निकल रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने सफर पे निकल रहा है तैयारी के लिए। ये सोचिएगा कि चलो साथ में ग्रुप बना के किसी मेडिकल हॉल में, किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो ठीक बात नहीं है वो। हाँ, सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए, बट हर इंसान का प्लानिंग अलग होता है, तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। फैमिली के अंदर दो लोग का सेम मेंटलिटी नहीं होता है, तो सेम मेंटलिटी रहेगा तो कोई किसी बात पर डिबेट ही नहीं होगा। इसलिए आप अपने तरीके से चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। कुछ सब मोमेंट पे ऐसा भी हो सकता है, कोई बोले चलो आज क्लास बंद कर लेते हैं, ऑनलाइन ही कर लेते हैं, आप आ जाइए। आप ये सोचिए कि मेरा करियर है, मुझे जो फर्स्ट डे बताया गया है थोड़ा हेक्टिक रहेगा, बट आप अपने सफर पर अकेले हैं। पेरेंट्स को भी हम रिक्वेस्ट करके आज ही हाथ जोड़ के बोलना है कि इस 9 मंथ मुझे सपोर्ट कीजिए और कॉपरेट कीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे ड्रॉप देने नहीं दीजिएगा। कम से कम लाइफ में ये तो कम से कम दिल में एक होगा ना, एक होता है आपने बेस्ट दिया, नहीं हुआ आपको पछतावा नहीं होगा, मैंने बेस्ट दिया था, चलो कोई बात नहीं, लक, हार्ड लक, कुछ और करेंगे। बट अगर एफर्ट नहीं लगाया तो बड़ा दिल में रहेगा, मैंने कोशिश नहीं किया शायद इसलिए नहीं हुआ, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो क्लास 11th का स्टूडेंट 2 कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी फर्स्ट, कॉपी सेकंड, ठीक है ना। और क्लास 12th का भी 2 कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी फर्स्ट एंड कॉपी सेकंड, ठीक है ना। ये मैं क्लास नोट्स का बात कर रहा हूँ, ये सब काम कल तक हो जाना चाहिए, कितना कॉपी बनाना है, ठीक है। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम का 2 कॉपी बनाइएगा, एक में क्लास 11th का प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग बनाएंगे, यहाँ देखिए फिजिक्स में क्या फॉलो करना है प्रॉब्लम के लिए। जैसे अब मैं अगर अभी मैं 10 बुक बोल दूं, आपसे नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर कि मैं उतना ही काम आपको बोल देता कि मुझे चाहिए आपसे फिजिक्स में। तो इसमें कैटलिस्ट का असाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम रहता है, और कैटलिस्ट का असाइनमेंट इस तरीके से फ्रेम किया गया है, इस तरीके से मतलब आपको 1% इस ये फील नहीं हुआ कि हाँ स्टैंडर्ड कोचिंग चाहे जो बड़ा कोचिंग में जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा उसमें प्रॉब्लम डाला हुआ है। क्योंकि मैं हम देखिए फैक्ट बता रहा हूँ, हम लोग टीचर है, कोचिंग रन कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी कोचिंग क्लासेस चल रहा होगा सबका स्टडी मटेरियल मेरे पास होगा या देखा होगा मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वहां पे जो भी बेस्ट कलेक्शन है वो कैटलिस्ट के असाइनमेंट पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको इस बात का फील ही नहीं होगा कि हाँ दूसरे ब्रांडेड कोचिंग का मटेरियल मेरे पास रखा या उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। इसलिए उस बात के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक एक कंपलसरी है, इतना ही कीजिए ना, इसी से मच मोर हो जाएगा। इसके अलावा HC वर्मा जितना मैं क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा बस उतना ही देख लीजिएगा,
सर आप एचसी वर्मा कितना डिस्कस करेंगे? जिस तरीके से मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है, ना चाहते हुए भी एक एक प्रॉब्लम एचसी वर्मा यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। एचसीवी का ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट कम से कम अगर किसी चैप्टर में 60 प्रॉब्लम है तो 40 तो डिस्कशन आप कर ही लीजिएगा। तो उस टाइम पे सिर्फ इसको क्लास में डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेना है। एचसी वर्मा का जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ, नॉट फॉर द पर्पस की मतलब वही क्वेश्चन आएगा फॉर क्लियरिंग द थ्योरी। मतलब एचसी वर्मा में जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ थ्योरी क्लियर करता है, तो वो यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। हालांकि ये जो पार्ट है वो नीट के लेवल से ऊपर का है एचसीवी, बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिखा दिया जाए, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो शाम का रेगुलर क्लास रहता है 11-12, ये बेसिक है, मिनिमम है, लेवल है, यहाँ से स्टार्ट ही करता हूँ, नॉट ये बहुत ज्यादा है। अगर मेरा क्लास का वीडियो देखिएगा दूसरे लेक्चर का, तो ये दिस इज द मिनिमम लेवल, नॉट मैक्सिमम होता है कि, लेकिन मेडिकल वालों के लिए मैक्सिमम लेवल मैं मानता हूँ। बट ऐसे जो जनरल में इंजीनियरिंग का पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मिनिमम लेवल है। ये भी अगर नहीं बनाते हो मतलब तुम तैयारी छोड़ दो, या तो तैयारी करो ही नहीं, अगर गट्स नहीं है तो मतलब फ्रैंकली तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे आपका इसका भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा, बट 60% 70% मतलब किसी चैप्टर में नहीं भी हो सकता है। मुझे लगा नहीं, इस चैप्टर को अच्छी भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। जैसे आप भी वही काम सोचेंगे जो आप उतना टाइम में कर सकते हैं, जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, तो मैं बोलूंगा सिर्फ प्रैक्टिस का असाइनमेंट कीजिए और एक कीजिए, दैट्स इट, ओके। अदरवाइज आपको बिल्कुल इतना ना प्रेशर दे दें कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मुझे पता है कि उतना नहीं हो पाएगा। वैसे ही ऑर्गेनिक में खुद ही कैटलिस्ट का असाइनमेंट कर लीजिएगा, मच मोर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा। मैंने कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ाया ना, मैंने कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ाया और आपने क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लिया, अगर मेरे पढ़ाने के बाद 98% अगर आपसे बन जाता है या 95%, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं बनेगा तो लेकर आइएगा कि सर नहीं बन रहा है, लेकिन जितना बातें क्लास में मैंने क्लियर किया है थ्योरी, उसके बाद अगर आपसे बन रहा है तो हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। पक्का बनेगा ही बनेगा, मतलब नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। ये मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, ये पता नहीं कि एक्चुअली उस तरीके से फ्रेम करके पढ़ाऊंगा, बनेगा, ठीक है। क्लास 12th का सेम सिचुएशन, क्लास 12th के लिए भी बनाइएगा प्रॉब्लम का नोटबुक, और इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कैटलिस्ट का असाइनमेंट चलेगा आपके लिए, खास करके कैटलिस्ट असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक, सम ऑफ द प्रॉब्लम एचसीबी। बट एचसीबी में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, जितना क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा उतना ही देख लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लास में प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा वो एचसीबी का हाईलाइटेड और सबसे बेस्ट कलेक्शन रहेगा, बस उतना को देख लेना है। ये सोच कर देखना है कि इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम टाइप थ्योरी, एक नाम देता हूँ प्रॉब्लम टाइप थ्योरी, ऐसा प्रॉब्लम जो थ्योरी के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द फिजिक्स प्लानिंग पार्ट, ओके एवरीवन। अब इसमें एक चीज रहेगा स्टूडेंट की, फिजिक्स में सर कौन सा पार्ट आप पढ़ाइएगा, तो ये अभी बोलना मुश्किल है, बट फिर भी मैंने जो नीट का स्ट्रेटजी देखा है उसमें वर्क पावर एनर्जी तक, वेक्टर से लेकर वर्क पावर एनर्जी तक ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आता है, और वहां तक बच्चे बना सकते हैं। मतलब पिछले साल मैं देख रहा हूँ तो अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी, मैंने काउंट भी कर लिया था, देख लिया था। तो वर्क पावर एनर्जी तक, वेक्टर से लेकर वर्क पावर एनर्जी तक इसका पार्ट मैं लेकर चलूंगा। कहां से कहां तक? वेक्टर से लेकर वर्क पावर एनर्जी तक, बट यहां तक जाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ फटाक से हो जाएगा। सेकेंड थिंग है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और एसएचएम, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर मैं नहीं लिया तो आर के सर लेंगे। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ईएमआई, ये पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। अभी लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए। परमानेंट मैग्नेट, एसी, आर के सर देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, आर के सर देखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। मॉडर्न पूरा मैं पढ़ाऊंगा, हीट पूरा मैं पढ़ाऊंगा, वेव पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना एवरीवन? यस सर। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन। कॉपी आज अपने तरीके से प्लानिंग करके बना लीजिए, अब प्रॉपर सिस्टमैटिक जैसे मैं बोला हूँ। मिलते हैं कल का क्लास, ठीक है। और अभी एक्चुअली मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत अभी दिमाग लगाना पड़ेगा।
अभी रूटीन मुझे फ्रेम करना है, दैट्स व्हाई कि आपको रूटीन कल तक मैं दे सकूं, ठीक है? आपके लिए रूटीन तैयार कर रहा हूं। बट कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कल से सुबह से लेकर शाम तक फुल फ्लेज में क्लास स्टार्ट होगी। ओके एवरीवन। सर कितने बजे से होगा? सब व्हाट्सएप ग्रुप पे शाम तक मिल जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? ओके। और जो लोग बाहर के हैं प्लीज एज सुन एज गुवाहाटी शिफ्ट कीजिए। ओके एवरीवन, थैंक यू।